السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، رکوع نمبر 11، آیت نمبر سورہ نور کی 35۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو۔ چراغ ایک فانوس میں ہو۔ فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی، نور علی نور، نور پر نور بھرنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز سے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ قرآن میں مختلف مثالوں سے ہمیں باتیں سمجھاتا ہے۔ اللہ کے نور سے مراد ہدایت کا نور ہے۔ جیسے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، ہدایت کی روشنی کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے۔ تو یہاں مومن کا دل جو ہے اس کے اندر جب ہدایت کا نور آتا ہے تو وہ ایک چراغ کی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور مومن پھر اللہ کے نور میں چلتا ہے، اللہ کی دی ہوئی روشنی میں چلتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، اور وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی مثال کیسی ہے؟ یہ تو مومن کی مثال تھی نا، مومن کے دل کی مثال تھی جس میں اللہ کا نور جگمگاتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں سراب ہو کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، دور سے وہ نظر آئے ریت چمکتی ہوئی جیسے پانی ہے، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا،
जिसने उसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया। और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। वल्लाहु सरीउल हिसाब, वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। या फिर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो कि ऊपर एक मौज छाई हुई हो, उस पर एक और मौज, और उसके ऊपर बादल तारीकी पर तारीकी मुसल्लत हो। जुलुमातुम बाजुहा फौक बाज, अंधेरों पर अंधेरे। आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे देख ना पाए। इदा अखरजा यदहु लम यकद यराहा, जिसे अल्लाह नूर ना अता करे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं है। वलम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, उसके लिए फिर अंधेरे ही अंधेरे हैं, कुफर के अंधेरे, जहालत के अंधेरे, गफलतों के अंधेरे। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ वत्तैरि सॉफ़ात। ये मजमून कुरान में बारहा हमने पढ़ा है कि क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों में हैं और जो जमीन में है। हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। और वो परिंदे भी जो पर फैलाकर उड़ रहे हैं वो भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, और ये सब कुछ जो कुछ करते हैं ये सब के सब, इनमें से हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है। कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, चाहे वो परिंदे हैं, जानवर हैं, दरख्त, पौधे, पहाड़, हवाएं, बादल, हर किसी को पता है कि हमारा तरीका इबादत क्या है। हमने अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, हमने अल्लाह की तस्बीह कैसे करनी है। जब कायनात की हर चीज जानती है कि हमारा तरीका इबादत क्या है, क्या इंसान को फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मैं भी सीख लूं कि मुझे अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, मुझे नमाज कैसे अदा करनी है। हम वो बचपन में जिस तरह कोई माँ बाप एक दफ़ा छोटे बच्चों को सिखा देते हैं, बाज़ औक़ात वो ये भी सोचते हैं कि चलें अभी बच्चा है, अभी उसको बस इतनी पढ़े तो सही, बस वो एक दफ़ा जो सीख ली सो सीख ली। उसके बाद हम कोशिश नहीं करते कि अपनी नमाजों को बेहतर बनाएं, सुन्नत के मुताबिक बनाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज़िक्र अज़कार हमें मिलते हैं, सजदे की दुआएं हैं, रुकू की दुआएं हैं, आपने फिर तशहुद में बैठ के आप कितनी दुआएं मांगा करते थे। ये बातें तो हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा करते थे कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं एक दफ़ा परेशान हो गई कि आपकी कहीं कहीं रूह परवास तो नहीं कर गई, इतना लंबा सजदा आपने किया। आप इतना लंबा क़याम करते थे कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते थे। लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि हम भी अपनी नमाजों को थोड़ा इम्प्रूव कर लें, थोड़ा बेहतर बना लें। यहाँ फरमाया कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, कायनात की हर चीज जानती है कि उसे कैसे अल्लाह की तस्बीह करनी है। हर एक का अपना अपना तरीका इबादत है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, और अल्लाह जानता है, बाखबर है उससे जो कुछ ये करते हैं। आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और उसी की तरफ सबको पलटना है। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादल को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, फिर इसके टुकड़ों को आपस में जोड़ता है, फिर उसे समेट कर एक घना बादल बना देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके खौल में से बारिश के कतरे टपकते चले आते हैं, और वो आसमान से उन पहाड़ों की बदौलत जो उसमें बुलंद हैं ओले बरसाता है। फिर जिसे चाहता है उनका नुकसान पहुंचाता है और जिसे चाहता है उनसे बचा लेता है। उसकी बिजली की चमक निगाहों को खीरा किए देती है। रात और दिन का उलट फेर वही कर रहा है। इसमें एक सबक है आंखों वालों के लिए।
युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतल लिउलिल अबसार। हैरत की बात है कि हवाएं मनों टनों पानी उठाए लिए फिरती हैं। जब बारिश होती है हम देखते हैं कि किस तरह हर तरफ जल थल हो जाता है, नदी नाले बह निकलते हैं। कुछ देर पहले यही पानी, तो पानी का एक ड्रम उठाना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। आप देखें कि इतना पानी हवाएं उठाई फिरती हैं। बज़ाहिर हवा एक ऐसी चीज है जो हमें नजर भी नहीं आती। जब तक अल्लाह का इज़्न नहीं होता हमें कहीं ऊपर पानी नजर आता है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं सारी, और इसमें सबक है आंखों वालों के लिए। वल्लाहु खलक़ कुल्ली दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि वमिनहुम मन यमशी अला अरबैन यखलुकुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। और अल्लाह ने हर चीज को एक तरह के पानी से पैदा किया। एक ही तरह के पानी से पैदा होने वाले जानवर, कोई पेट के बल चल रहा है तो कोई दो टांगों पर, कोई चार टांगों पर। जो कुछ वो चाहता है पैदा करता है, वो हर चीज पर कादिर है। हमने साफ साफ हकीकत बताने वाली आयात नाजिल कर दी हैं। आगे सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत अल्लाह ही जिसे चाहता है देता है। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली, ये लोग कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर और हमने अताअत कबूल की, मगर उसके बाद उनमें से एक गिरोह अताअत से मुंह मोड़ जाता है। ऐसे लोग हरगिज मोमिन नहीं हैं। जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और रसूल की तरफ ताकि रसूल उनके आपस के मुकदमे का फैसला करे, तो उनमें से एक फरीक कतरा जाता है। अलबत्ता अगर हक उनकी मुआफ़क़त में हो तो रसूल के पास बड़े अताअत गुजार बनकर आ जाते हैं। क्या इनके दिलों को मुनाफ़क़त का रोग लगा हुआ है? अफ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अम इर्ताबू, या ये शक में पड़े हुए हैं, या इनको ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म करेगा। असल बात ये है कि जालिम तो ये लोग खुद हैं। रुकू नंबर 13। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समीना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ईमान लाने वालों का काम तो ये है कि जब वो अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि रसूल उनके मुकदमे का फैसला करे, तो वो कहें कि हमने सुना और मान लिया। ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। और कामयाब वही हैं जो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करें और अल्लाह से डरें और उसकी नाफरमानी से बचें। तो यहाँ कामयाबी का मयार क्या बताया गया? मन युतिल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तक़ी। अल्लाह और रसूल की अताअत, अल्लाह का तक़वा और उसकी खशियत, ये चीज़ें हैं जो इंसान को कामयाबी दिलाती हैं। ये कामयाबी का मयार है। ये मुनाफिक अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि आप हुक्म दें तो हम घरों से निकल खड़े हों। इनसे कहो कसमें ना खाओ, तुम्हारी अताअत का हाल मालूम है। तुम्हारे करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है। कहो अल्लाह के मती बनो और रसूल के ताबे फरमान बनकर रहो। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि रसूल पर जिस फर्ज का बार रखा गया है उसका जिम्मेदार वो है, और तुम पर जिस फर्ज का बार डाला गया है उसके जिम्मेदार तुम हो। उसकी अताअत करोगे तो खुद ही हिदायत पाओगे, वरना रसूल की जिम्मेदारी इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि साफ साफ हुक्म पहुंचा दे। वमा अलर रसूली इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ने वादा फरमाया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और नेक अमल करें कि वो उनको उसी तरह ज़मीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है। उनके लिए उनके उस दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम कर देगा जिसे अल्लाह ताला ने उनके हक में पसंद किया है, और उनकी मौजूदा हालत खौफ को अमन से बदल देगा। बस वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। ये करना चाहिए बस उन्हें। या बुदूननी ला युशरिकून बी शैया वमन कफर बाद ज़ालिका व उलाइका हुमुल फासिकून। और जो इसके बाद कुफर करे तो ऐसे ही लोग फासिक हैं।
वअक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल की अताअत करो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। जो लोग कुफ्र कर रहे हैं उनके मुतालिक इस गलत फहमी में ना रहो कि वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर देंगे। उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। वमावाहुमुन्नार वलबिसल मसीर। रुकू नंबर 14। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम। ए ईमान वालो, लाजिम है कि तुम्हारे लौंडी, गुलाम और तुम्हारे वो बच्चे जो भी अक्ल की हद को नहीं पहुंचे हैं, 3 औकात में इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया कर। अल्लाह का हुक्म है ये, 3 औकात में इजाजत लेके तुम्हारे पास आए। सुबह की नमाज से पहले, दोपहर को जब तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, और इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे लिए पर्दे के वक्त हैं। इनके बाद वो बिला इजाजत आए तो ना तुम पर कोई गुनाह है और ना उन पर। तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने इरशादात की वजाहत करता है और वो अलीम व हकीम है। और जब तुम्हारे बच्चे अकल की हद को पहुंच जाएं तो चाहिए कि उसी तरह इजाज़त लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाज़त लेते रहते हैं। इस तरह अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे सामने खोलता है और वो अलीम और हकीम है। कैसे कैसे हमें इस्लाम में हदायत दी गई हैं माशरती ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है और वो वाकई ये 3 टाइम ऐसे हैं कि इंसान आराम करने के लिए बाज़-औक़ात हल्के कपड़े पहनने होते हैं, बाज़-औक़ात इंसान किसी हालत में होता है, तो इन मौक़ों पर ख़ास तौर पे इजाज़त लेकर आने का हुक्म दिया गया है। और वो औरतें जो जवानी से गुजरी बैठी हों, निकाह की उम्मीदवार ना हों, यानी बड़ी उम्र की। वल कवाइदु मिनन निसा इल्लती ला यरजून निकाहन, वो अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। यानी एक ख़ास उम्र के बाद, बढ़ापे की उम्र में औरतों के लिए वो पर्दे की वो वाली सख्ती नहीं रहती जो जवानी में होती है, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। यहाँ पे भी बाउंड कर दिया कि ये नहीं कि उम्र ज़्यादा हो गई है और इस बात से फ़ायदा उठाकर सारा मेकअप भी किया हुआ और कहेंगे नहीं जी हम तो अब उम्र की उस हद को पहुंच गए हैं कि अब हम पे वो पाबंदियां लागू नहीं होती। साथ शर्त क्या है कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ताहम वो भी हयादारी बरतें तो उनके हक में अच्छा है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। लैसा अलल आमा हरजुम वला अलल आरज हरजुम वला अलल मरीज हरजुम वला अला अंफुसिकुम। कोई हर्ज नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खा ले, यानी जो स्पेशल लोग होते हैं, ये उनके हुकूक बताए गए हैं। और ना तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मुज़ायका है कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माँ नानी के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारी स्पुर्दगी में हों, या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। दुआए खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की हुई बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा। इस तरह अल्लाह तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, उम्मीद है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। रुकू नंबर 15। मोमिन तो असल में वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने और जब किसी इज्तमाई काम के मौके पर रसूल के साथ हों तो उससे इजाज़त लिए बगैर न जाएं। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपसे इजाज़त मांगते हैं वही अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। बस जब वो अपने किसी काम से इजाज़त मांगे तो जिसे आप चाहें इजाज़त दे दिया करें, और ऐसे लोगों के हक़ में अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत किया करें। अल्लाह यकीनन गफ़ूरुर रहीम है। इसमें हमारे लिए भी एक सबक है कि जो लोग कहीं मुलाजमत में हों, कहीं काम करते हों,
تو انہیں بلا اجازت اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اجازت لے کے جانا چاہیے۔ اس سے ایک ڈسپلن قائم رہتا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مسلمانوں اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، یعنی آپ کا مرتبہ پہچانو، آپ کا مقام پہچانو۔ آپ اگر بلاتے ہیں کسی کو تو اسے ایسا نہ سمجھو جیسے کسی عام انسان نے بلایا ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار ہو جاؤ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس وقت لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، 77 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سب تعریف اللہ کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ برکت والا ہے وہ اللہ، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ اللہ کی توحید کی وجوہات بتا دی کہ اللہ کون ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ۔ ولم یتخذ ولدن، وہ اللہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، کہ بادشاہی میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں اور نہ مرے ہوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، ایسے کہنے والے بڑا ظلم اور سخت جھوٹ کہتے ہیں، اور بڑے سخت جھوٹ اور ظلم پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سہل زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو کیسی کیسی دلیلیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوجتی۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، رکوع نمبر 17۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، بہت بابرکت ہے وہ ہستی، بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو اگر چاہے
تو इनकी तजवीज़ करदा चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर तुम्हें दे सकता है। एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल्लात। असल बात ये है कि ये लोग इस घड़ी को झुठला चुके हैं, और जो उस घड़ी को झुठलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। वो घड़ी कौन सी है? क़यामत की घड़ी। उसके झुठलाने वालों का अंजाम क्या है? सईरा इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बाईदिन समिउ लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा। अस्तग़फिरुल्लाह। वो जब दूर से उनको देखेगी तो ये उसके गज़ब और जोश की आवाज़ें सुन लेंगे। आवाज़ आग की भी होती है ना, जब आग जलती है तो उसकी आम आवाज़ आग की आवाज़ होती है, तो वो आग जिसका ईंधन पत्थर होंगे, लोग होंगे, उसकी कैसी आवाज़ होगी। ये हाथ पांव बंधे हुए उसमें तंग जगह ठोंसे जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह, तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा, आज एक मौत को नहीं, बहुत सी मौतों को पुकारो। ला तदउल यौमा सुबूरम वाहिदम बदउ सुबूरन कसीरा। उनसे पूछो ये अंजाम अच्छा है या वो अबदी जन्नत जिसका वादा अल्लाह ने मुत्तकी लोगों से किया है, जो उनके अमल की जजा और उनके सफ़र की आखिरी मंजिल होगी, जिसमें उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। सुबहान अल्लाह, ये बड़ी प्यारी बात है। लहुम फीहा मा यशाऊन, उनके लिए उसमें हर वो चीज़ होगी जो वो चाहेंगे। बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं ना कि जन्नत में क्या होगा, ये चीज़ जन्नत में मिलेगी या नहीं मिलेगी, मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। तो अल्लाह ने बात ही ख़त्म कर दी। लहुम फीहा मा यशाऊन, उस जन्नत में उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेंगे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, और फिर उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। जिसका अता करना तुम्हारे रब के लिए, रब के ज़िम्मे एक वाजिबुल अदा वादा है। काना अला रब्बी का वादम मसऊला, और रब भी कभी वादों के खिलाफ करता है। वयौम यहशुरुहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, और वही दिन होगा जबकि तुम्हारा रब उन लोगों को भी घेर लाएगा और उनके उन माबूदों को भी बुला लेगा जिन्हें आज ये अल्लाह को छोड़कर पूछ रहे हैं। फिर वो उनसे पूछेगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद राह रास्त से भटक गए थे? वो अर्ज करेंगे, पाक है आपकी ज़ात, हमारी तो ये भी मजाल न थी कि आपके सिवा किसी को अपना मौला बनाएं, मगर आपने इनको और इनके बाप दादा को खूब सामान्य ज़िंदगी दिया, हत्ता कि ये सबक भूल गए और शामत ज़दा होकर रहे। यूं झुटला देंगे वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी उन बातों को जो आज तुम कह रहे हो। जिनको पूज रहे हैं लोग, जिन कब्रों को पूज रहे हैं, उन कब्र वालों को क्या पता कि हमारी पूजा हो रही है। उस दिन वो साफ मुकर जाएंगे, वो कहेंगे, अल्लाह हमें नहीं पता कि हमारे बाद इन्होंने क्या क्या किया। फिर तुम ना अपनी शामत को टाल सकोगे, ना कहीं से मदद पा सकोगे, और जो भी तुम में से जुल्म करे उसे हम सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे थे वो सब भी खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग ही थे। दरअसल हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बना दिया है। ये आयत अगर हम समझ जाए ना, मेरा ख्याल है हमारी माशरती ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए। हमारे आपस के जो मसाइल होते हैं सब ख़त्म हो जाए। वजअलना बाज़कुम लिबाज़िन फितना, दरअसल हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का ज़रिया बनाया है। तमाम इंसान एक दूसरे के लिए इम्तहान हैं। अल्लाह ये बात फरमा के बड़े प्यार से फिर हमसे पूछते हैं, मेरे बंदो, ये तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, जिनकी वजह से तुम्हें कोई अजियतें पहुंचती हैं, ये तो मैंने इसलिए तुम्हारे इर्द गिर्द ये लोग रखे हैं ताकि तुम्हारा टेस्ट किया जाए, तुम्हारा इम्तहान लिया जाए। ये लोग तो इम्तहान हैं।
پھر مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس امتحان میں پورے اترو گے؟ اتصبرون؟ بتاؤ، جیسے کوئی بڑے پیار سے، محبت سے کسی بچے سے نہیں پوچھتا میرا بچہ یہ کام کرے گا نا، بتاؤ کرو گے؟ اللہ بھی ایسے ہی پوچھتے ہیں۔ ہاں اگر پھر تم کرو گے نا، وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب دیکھ رہا ہے نا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چلی کٹی باتیں بعض اوقات انسان سے صحیح نہیں جاتی، بعض اوقات کچھ لوگ آپ کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں واقعی، نہ آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر اگر آپ کے کان میں اللہ کی یہ سرگوشی آئے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، میں نے کچھ لوگوں کے لیے امتحان بنایا ہوتا ہے، اے میرے بندو صبر کرو گے؟ اتصبرون؟ اور اگر کرو گے، وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے، وہ ہے نا۔ ہم نے وہ پڑھا تھا نا، اللہ فرما رہے تھے کیا موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کے پاس، ڈرنا نہیں ہے، میں ہوں نا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنوانے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ایک ہستی ہے نا جو مجھے دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، اور میں ہر وقت اس کی نظر میں ہوں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس کی نظر سے اوجھل ہو۔ جب اس نے دیکھ لیا پھر کوئی دیکھے نہ دیکھے، جب اس نے سن لیا پھر کوئی سنے نہ سنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سمجھ آتے آتے آتی ہے، اتنی جلدی سے نہیں آتی، ٹائم لگتا ہے اس کو، اور اس کے لیے اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت جتنی دفعہ بھی پڑھو ایسے لگتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ، اور ہے ہی یہ میرے لیے۔ فیہ ذکرکم، اس کتاب میں ذکر ہی تمہارا ہے، باتیں ہی تمہاری ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے، محسوس کرنے کی بات ہے نا۔ بس اللہ ہمیں اس کتاب کا فہم عطا کر دے، اس کی سمجھ عطا کر دے، ہمارے دلوں میں اتار دے یہ کتاب۔ اللہ اپنا کلام ہمارے دلوں میں مزین کر دے، سجا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ الحمدللہ ہمارا 18واں پارہ مکمل ہوا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین،
اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.